यीशु साहब, आइए आज की संडे क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर दयालु पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें सुंदर दिन को देखने दिया है। हम अपने हर एक पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं पिता। आज के दिन पिता, हम सभी बच्चे ऑनलाइन संडे स्कूल क्लास के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और कुछ नया सीखने जा रहे हैं पिता। इस घड़ी सभी बच्चों के साथ रहिए कि वे आज का पाठ अच्छे से सीख सकें। बाकी सारे टीचर्स, पादरी, पंच और अधिकारियों के साथ रहिए पिता कि वे इस मुश्किल घड़ी में इस मंडली को एक साथ जोड़ के रखें और सभी मिलकर आपकी महिमा स्तुति साथ में कर पाए। इस छोटी विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पूरे विश्व में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से हम लोग इस साल खजूर इतवार, भला शुक्रवार और ईस्टर जैसे पर्व साथ में नहीं मना पाए। तो आज की क्लास में हम बताते हैं कि गुड फ्राइडे और ईस्टर क्यों मनाया जाता है। चलिए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। On the day of his death, soldiers surrounded Jesus and treated him terribly. "Hail the King of the Jews," they snickered, as they pressed a crown of thorns onto his head and hit him over and over with a staff. But Jesus was silent. He didn't speak up as they told lies about him or laughed at his pain. This was the very reason he came into the world. Jesus would give his life to save the world from its sin. Like an innocent lamb, he was led to his death. Jesus was forced to carry his cross up a hill called Golgotha, which means place of the skull. It was a horrible place, and there Jesus was hung on a cross between two criminals. Those who passed by shouted insults at him. "He saved others, but he can't save himself. If you are so powerful, come down off that cross." But Jesus wouldn't come down. He had chosen to die. He had chosen to love the world so deeply that he would give his life away to save it. As Jesus got closer to death, the sky became black, and from the darkness Jesus cried out, my God, why have you forsaken me?" Shortly after, Jesus cried out again and then died. At the moment of his death, there was a violent earthquake. Inside the temple, the thick curtain that once separated a holy God from sinful man tore from top to bottom. These events terrified the soldiers who were there, and they confessed, "This has to be the Son of God." Late in the afternoon, Jesus' body was wrapped with cloth and placed in a tomb. This tomb was carved from rock, and a huge stone was rolled over the entrance. Jewish leaders remembered that Jesus claimed he would rise from the dead after 3 days. They feared his disciples would steal his body and claim that Jesus had risen. These Jewish leaders demanded the tomb be made secure. Roman soldiers were ordered to seal the tomb and stand watch outside of it. 3 days later, early in the morning, 2 women who had been followers of Jesus went to see the tomb. Suddenly the earth began to shake beneath their feet as an angel came down from heaven and rolled away the stone from the entrance of the tomb. The angel shone like lightning, and the Roman soldiers standing guard fell to the ground like dead men. But the angel proclaimed good news to the women. "Jesus is not here. He is risen. Hurry, go and tell the disciples." The women ran from the tomb, astonished at what they had just seen. Filled with joy, they ran to tell the disciples what the angel had said. Suddenly, a man was standing in front of them. "Good morning," the man said. The women realized that it was Jesus standing before them.
and they fell to his feet and began to worship him. Jesus told them not to fear, and then he told the women to tell the disciples to go to Galilee and that he would see them soon. Later, the disciples went to the mountain in Galilee where Jesus had told them to go. When they saw Jesus, they were amazed. The disciples, filled with joy, worshipped him. Jesus was alive. He had risen from the dead just as he had promised. Jesus then gave his disciples a very important mission. Go, tell the world the good news about me. Make disciples and teach people to obey my commands. And to this very day, the good news of Jesus' death and resurrection is being shared around the world. जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि यीशु मसीह ने किस तरह अपने प्राणों को हमारे पापों के लिए दे दिया और उसके बाद वो फिर से जी उठे। पहली घटना में हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु से पहले सैनिक उसे बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाते हैं और सिर पर कांटों का मुकुट पहनाते हैं। फिर वे उसे झुककर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये यहूदियों के राजा नमस्कार। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि पहले ज़माने में जो राजघराने के लोग थे वो लोग बैंगनी रंग के वस्त्र पहनते थे, इसलिए वे उसे बैंगनी रंग के कपड़े देते हैं, उसे पहनाते हैं। और राजा लोग मुकुट पहनते हैं, इसलिए उन्हें वे कांटों का मुकुट बना के पहनाते हैं। ऐसा करके वे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। ये सब होते रहता है। उसी के दौरान शमौन नाम का एक व्यक्ति था जो उधर से ही गुजर रहा था। सैनिक उसको बुलाते हैं कि यीशु का जो क्रूस है उसको उठाए वो। फिर वे यीशु मसीह को गोलगोथा नाम की एक जगह पर ले जाते हैं। गोलगोथा का अर्थ है खोपड़ी की जगह। वहाँ पे उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। उसके साथ 2 डाकू और भी थे जिसे उन्होंने उसके दाईं ओर और एक को बाईं ओर चढ़ाया। और जैसे ही यीशु मसीह मृत्यु के निकट पहुंचे, पूरे आकाश में अंधकार हो गया। यीशु मसीह ने दर्द में कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके कुछ देर के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो जो मंदिर का पवित्र स्थान में जो पर्दा था वो 2 भागों में बट गया। उसी दिन शाम में अरमितिया में रहने वाला यीशु पिलातुस के पास आया। वो यीशु में बहुत विश्वास रखता था। उसने पिलातुस से यीशु मसीह का शव मांगा। उसने सूती कपड़ा खरीदा और उसे लेकर यीशु मसीह के जो शरीर थे उसको पूरी तरह से लपेट लिया। वो उसे लेकर कब्र में गया और वो कब्र पत्थर की गुफा के अंदर थी। उसने यीशु मसीह के शव को वहाँ पे रखा, फिर कब्र के दरवाजे पर पत्थर लुढ़काकर उसे बंद कर दिया। अब तक की ये जो घटना मैंने बताई, ये वह दिन है जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। इस दिन यीशु मसीह ने बहुत ही कष्ट उठाया और मृत्यु को स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन के बारे में। उस दिन सुबह सुबह ही मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी नाम की 3 स्त्रियां कब्र के पास आती हैं। वहाँ पर वे ये देखती हैं कि दरवाजे पर जो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था वो वहाँ से लुढ़का हुआ है। फिर वे अंदर जाती हैं और देखती कि एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है। उसने सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसके पूरे चेहरे से प्रकाश चमक रहा था। जब वो उस व्यक्ति को देखती है तो वे डर जाती हैं। वो व्यक्ति उनसे कहता है कि हैरान मत हो, तुम लोग यहाँ यीशु मसीह को देखने आई हो ना। वो यहाँ पे नहीं है, वह जी उठा है। जाओ जाकर चेलों से कह दो कि वो उन्हें गलील में मिले, वो वहीं आएगा। फिर वो स्त्रियाँ डर जाती हैं, डर के वहाँ से चली जाती हैं। बाद में चेलों को यीशु मसीह दर्शन देते हैं। उनसे कहते हैं कि जाओ जाकर सारी सृष्टि में मेरे वचन का प्रचार करो। उसके कुछ देर के बाद यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठते हैं। उसके बाद उनके चेले हर ओर फैलकर उनके वचन का प्रचार करते हैं। यह जो तीसरा दिन था, उस दिन यीशु मसीह मृत्यु के बाद जी उठे थे। वे धरती पर इसलिए आए थे कि वे अपना जीवन हम लोगों के पापों के लिए बलिदान कर सकें। इसी दिन को याद करते हुए हम मसीही लोग ईस्टर या पुनरुत्थान पर्व मनाते हैं। इस पूरी घटना को विस्तार से जानने के लिए आप बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय
वचन 16 से लेकर 47 और 16वें अध्याय के वचन 1 से लेकर 20 तक देख सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि हम लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर क्यों मनाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आज की क्लास को खत्म करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें आशीष दी कि हम आपके बारे में आज कुछ जान सके पिता। इन सभी बच्चों को आशीष दीजिएगा पिता कि वे इस लेसन को हमेशा याद रखें पिता। इस कठिन परिस्थिति में पिता, इस महामारी के दौरान हम सभी परिवार के साथ रहिएगा पिता कि सभी इस घड़ी में स्वस्थ रहें पिता, ताकि हम आगे भी जाके आपके बारे में बहुत सारी नई बातें सीख सकें। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से ग्रहण करिए। आमीन। तो अब वक्त हो चला है एक्शन सॉन्ग करने का। तो आइए वक्त हो चला है हमें इस संडे स्कूल को समाप्त करने का। अभी हमें गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षीवाणी से, गीत नंबर 288। छोटे भले कार्य
हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना में जाएं। प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इस दिन को देखने में हमारी सहायता की है। परमेश्वर, जो ये हमने एक नया अपना ऑनलाइन संडे स्कूल स्टार्ट किया है, आप उसमें अपनी आशीष दीजिए, ताकि हम हर बार जो भी वीडियो बनाते हैं वो हमारे बच्चों तक पहुंचने पाए और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आशीष बरसाने पाए। परमेश्वर, हम आशा करते हैं कि आप वो सारे बच्चे इस वीडियो को देखते होंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते होंगे। परमेश्वर, अभी दुनिया में जो भी महामारी चल रही है उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि क्या होता है परमेश्वर, पर हम इतना जानते हैं कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। आप अपना सामर्थ्य हाथ हम पर बढ़ाए रखेंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर, जो भी डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन ये सब काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं, उन सबको अपने हाथों में सौंपते हैं। आशा करते हैं कि वो सही सलामत होंगे और जो भी ट्रीटमेंट में कर रहे हैं उन सब में उन्हें अपनी आशीष को दीजिए, अपना हाथ उन पर बढ़ाइए, ताकि वे जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करने पाए। परमेश्वर, हम आपसे और क्या मांगे, हमारी छोटी सी प्रार्थना सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। तो आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना से एंड करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता हम सबों के साथ सदा बनी रहे। थैंक यू, बाय।